Hello everyone. So in today's English literature class we did our poem number 2, The Little Daisy. The poem is about as you can see from the name of the poem, Daisy. Daisy are these beautiful flowers with white petals. Petals क्या होती हैं? ये पंखुड़ियाँ, ठीक है. This is the center part of the flower and these are the petals. So they are wild flowers which are used for decoration and they are very beautiful. So how we started the poem, you have to read the poem, children. Once you will read it and then you will not read it like story. जैसे हम स्टोरी को पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा हम इसको स्लो वे में पढ़ते हैं. आपको पता है ना पोम्स को कैसे रिसाइट करते हैं, इन अ वेरी स्लो मैनर. सो वी टेक पॉजेस एंड we rhyme with the words like daisy, lazy, sun, done. So they are rhyming. So it happens in the poem that you have these rhyming words which match with each other. Okay, so I will start with the explanation. The little white daisy opened with the sun. I am not lazy when there's work to be done. So the I am is who. Here the speaker of the poem is the little daisy flower. Okay, so the flower is saying that I am not lazy when there is work to be done. So whenever you know that after the sunset the flowers and the plants they sleep, we don't give water and we don't pluck them. All the elders tell you in the family na that don't pluck the flowers or don't water them after the sunset. Why? Because we feel that they are sleeping and they just shut down. The flowers just close their petals, and when the sun comes early in the morning, then with the sunrise their petals also get open. Okay, so the flower is telling that I am not lazy, मैं आलसी नहीं हूँ. When there is work to be done, जब काम करने की बारी आती है, I am not lazy. The bee will come to suck my honey and she doesn't pay me with any money. So the flower is saying that honeybee will come to suck the honey. What is the meaning of suck? I have given you in the word meanings also that whenever you are just pulling out liquid or air and you are sucking, that process is called sucking. Okay, to suck is means to pull out the liquid and to air. We don't use suck word with the solid food, like you never say suck orange or suck banana. No, you don't say that because they are eatables and they are solid foods. So we don't say suck word when you are talking about solids, only when you are using liquids and air. Okay, so the flower is saying कि हनी भी जो है आएगी और मुझे मेरे जो फ्लावर हैं, मेरा जो उसमें से क्या लेगी, हनी लेगी और वो मुझे पे भी नहीं करेगी. कोई पे मतलब उसके बदले में वो मुझे मनी नहीं देती और मेरा जो है हनी लेके जाती है. बट विदाउट हर आई वुड हैव नो सीड्स एंड नो मोर डेजीज वुड ग्रो अमंग द रीड्स. लेकिन अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा कि जो सीड्स हैं वो जो डेज़ी के ऊपर सीड्स लगे होते हैं वो बीज की बॉडी में नहीं जाएंगे अगर वो हनी नहीं लेगी. और जब वो हनी लेती है तो वो सारे जो सीड्स होते हैं वो नेक्स्ट फ्लावर पे जब बैठती है और कहीं और जाती है तो वो सीड्स बिखेरते हुए जाती है और इस तरह से जो है सीड्स फैलते हैं. और जब सीड्स फैलेंगे तो आपको पता ही है कि जब भी किसी चीज़ के सीड्स सॉइल पे गिरते हैं तो वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो डेजीज फ्लावर्स जो हैं वो अपने आप ग्रो करते हैं. तो हनी भी इन रिटर्न क्या हेल्प करती है डेजी की, वो उसके जो फ्लावर्स हैं और फैलाने में हेल्प करती है. सो वुड ग्रो अमंग द नो मोर डेजीज. डेजीज इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द डेजी वर्ड. ओके, डेजी वर्ड का प्लूरल फॉर्म है डेजीज. वुड ग्रो अमंग द रीड. अमंग मीन्स इन द मिडल ऑफ, एंड रीड्स क्या होते हैं, आपके टॉल ग्रास प्लांट्स होते हैं. ग्रास के जैसा लगता है बट वो होता नहीं. दे आर टॉल प्लांट्स एंड दे ग्रो नियर और इनटू द रिवर.
या तो पानी के पास होते हैं या पानी के अंदर ग्रो करते हैं। और मैंने आपको पिक्चर्स भी भेजी है उनकी, डेजी फ्लावर की और रीड्स की, तो आपको समझ में आ जाएगा उनको देख के कि रीड्स क्या होते हैं। सो स्टोरीज, ये पोम से हमें क्या मॉरल मिलता है चिल्ड्रन, दैट इन नेचर वी हैव टू हेल्प वन अनदर, और हमें किसी की हेल्प लेनी भी पड़ती है और हमें किसी को हेल्प देनी भी पड़ती है। ऐसे ही है जो हमारा वर्ल्ड जो है वो ऐसे ही चलता है, और इसी से हमारी जो नेचर में है हैप्पीनेस रहती है, मेंटेन रहती है, क्योंकि हमें किसी न किसी की मदद मिलती रहती है और किसी न किसी की मदद हम भी करते हैं कभी ना कभी। ऐसे तो नहीं सब सोचते ना कि हमने किसी की हेल्प ही नहीं करनी है, हमें नहीं किसी की ज़रूरत, ऐसे कभी नहीं होता। लाइफ में हमेशा आपको किसी की हेल्प लेनी भी पड़ती है और किसी की हेल्प करनी भी पड़ती है। सो होल नेचर, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों, तो सब कुछ जो है ऐसे ही मेंटेन रहता है आपकी नेचर में। हमें हेल्प करनी भी पड़ती है और हेल्प लेनी भी पड़ती है, एंड दैट्स हाउ वी आर हैप्पी। और यही हमारी हैप्पीनेस भी इसी में है कि हमें खुश रहने के लिए एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, और जब हमें ज़रूरत हो तो दूसरे की मदद लेनी भी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ दिस पोम। सो रीड दिस पोम वेरी केयरफुली, एंड the words are very simple. Few words are new for you, like suck and among or reeds or daisy, so I have given the word meaning for them. I hope you like the poem. Thank you.